الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا مولانا ابوالقاسم محمد صلی اللہ محمد محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین والفرقانہ الحمید وقال الحق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ محمد محمد. تمام تر محرم ہے تو آج جو میں ذکر پڑھوں گی وہ بھی امام کے اس اصحاب کا پڑھوں گی جو آیا تو سب سے بعد میں ہے، لیکن اسے حسین ابن علی نے سب سے پہلے چن لیا تھا. حسین دشت میں یہ اہتمام کرتا ہے، حسین دشت میں یہ اہتمام کرتا ہے، قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے. کہا کہ جا حسین ابن علی سے معافی مانگ، جا حسین ابن علی سے معافی مانگ لے. انہوں نے کہا کیا حسین مجھے معاف کر دے؟ دل نے کہا ہاں تو جا کر معافی مانگ لے، حسین معاف کر. انہوں نے کہا میرا جرم بہت بڑا ہے، میری خطا بہت بڑی ہے، میں حسین کو گھیر کے اس جنگل میں لے آیا ہوں، حسین مجھے کس طرح معاف کر دیں گے؟ دل نے کہا کہ میں تیرا دل ہوں نا، اور میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس دل والے سے جا کر دل سے معافی مانگ لے، وہ دل والا تجھے دل سے معاف کر دے. اب دل نے سمجھایا اور اٹھا جانے کے لیے، جانے لگا کہ دماغ نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا حسین ابن علی سے معافی مانگنے جا رہا. کہا بیٹھا تیرا طبیعت درست ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے تو نے جرم کیا کیا ہے؟ تو حسین کو گھیر کے اس جنگل میں لے آیا ہے، تجھے لگتا ہے حسین ابن علی تجھے معاف کر دیں گے؟ واپس بیٹھ. اور واپس بیٹھ گیا. دل نے پوچھا کیا ہوا؟ گیا نہیں. کہا دماغ کہتا ہے کہ میرا جرم بہت بڑا ہے، حسین مجھے معاف نہیں کرے. دل نے کہا اس دماغ کی مت سن، اس نے پہلے بڑوں کے کام خراب کیے. وہ جو تھا نا جس نے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا، ہر مقام پہ سجدہ کیا تھا، اس کے ایک مشورے نے اسے ابلیس قرار دلوا دیا. اس لیے اس کی بات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جا اور جا کر حسین سے معافی مانگ، وہ بے دل کا نذیر تجھے ضرور معاف کر دے گا. اس نے کہا اچھا تجھے اتنی تسلی کی، تجھے اتنا اطمینان کیوں ہے کہ حسین مجھے معاف کر دیں گے؟ انہوں نے اپنے دل سے پوچھا. دل نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ حسین تجھے معاف کر دیں. مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے، مانا کہ تیری ذات کا قد کوئی نہیں ہے، یہ بھی کہ تیرے جرم کی حد کوئی نہیں ہے، لیکن یہ وہ در ہے کہ جہاں حد کوئی نہیں ہے، اور شبیر سا دنیا میں سمر کوئی نہیں ہے، شبیر سا دنیا میں سمر کوئی نہیں ہے. معصوم ہے مولا ہے زمانوں کا ولی ہے، معصوم ہے مولا ہے زمانوں کا ولی ہے. ارے مجرم تو ہے تو، وہ تو حسین ابن علی ہے. اب اس نے کہا اچھا، اب یہ پھر ہچکچانے لگا. دل نے کہا جا 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 کر حسین سے معافی ہو. اب یہ اس نے کہا اچھا میں جاؤں؟ اس نے کہا، دل نے کہا ہاں جاؤ. دل فرماتا ہے کہ دیکھو جلدی جا،
कोशिश कर ना डाल और अपने ऊपर गज़ब तू, कोशिश कर ना डाल अपने ऊपर गज़ब तू, मकसद जो मिला है तो बना अपना हसब तू, मौका जो मिला है तो बना अपना हसब तू, समझा ही नहीं मकसद सुल्तान अरब तू, समझा ही नहीं मकसद सुल्तान अरब तू, है आज की शब जंग के टलने का सबब तू। हुर कहता है तू, वो दिल कहता है हुर क्या तू समझता है कि हुसैन ने कोई लश्कर मंगा रखा है, कोई फौज है जो आ रही है जिसका हुसैन इंतज़ार कर रहे हैं? कहा नहीं। कहा तुझे लगता है तो हुकूमत है, कोई काफिला रास्ते में जिसका इंतज़ार किया जा रहा है? कहा नहीं। कहा तू समझ ही नहीं रहा क्या है आज की शब जंग के टलने का सबब तू, कब कभी अपनी मुश्किल को आसान किया है, कब किसी अपनी मुश्किल को शहने आसान किया है, शहने ये तेरी खुल्द का सामान किया है। किसी को हुसैन खैमे से बाहर निकाल रहा तो किसी का इंतज़ार है। ज़ुआक इब्न अब्दुल्ला, जिसे ज़माना जमाल के नाम से याद करते हैं, जमाल कोई नाम नहीं है, जमाल है लफ्ज़ जमल से निकला हुआ, यानी ऊँटों को चढ़ाने वाला। जैसे बहुत ज़्यादा कौल कहने वाले को कव्वाल कहा जाता है, ज़्यादा नसर निगारी करने वाले को नसार कहा जाता है, सोने के काम करने वाले को सराफ कहा जाता है। इसी तरीके से ये लफ्ज़ जमाल है, तो जमल से। ये ज़ुआक इब्न अब्दुल्ला वो है जो हुसैन के साथ आया था मदीने से, ये ऊँट लेकर हुसैन से आया, और 9 मुहर्रम की जब रात आई तो हुसैन ने इसको ऊँट वापस करे, इसकी उजरत दी और इसे वापस मदीने रवाना किया, क्योंकि हुसैन इसकी नीयत जानते और सरकार उनका इंतज़ार करना शुरू। अब हुर फिर हिचकिचाने लगा। दिल ने कहा क्यों हिचकिचाना? कहा सोच रहा हूँ कि अगर मैं चला भी गया तो मुझे मिलाकर 72 हो जाएंगे, मुझे मिलाकर 72 हो जाएंगे, वहाँ 9 लाख का लश्कर है। दिल कहता है क्या चाह के अबा सीने का कुछ शौक़ नहीं है, क्या चाह के अबा सीने का कुछ शौक़ नहीं है, तकदीर के इस जीने का कुछ शौक़ नहीं है, कौसर के सबू पीने का कुछ शौक़ नहीं है, क्या हश्र तलक जीने का कुछ शौक़ नहीं है, क्या हश्र तलक जीने का कुछ शौक़ नहीं है। बोलने का लेकिन मैं जाऊंगा भी तो 72 हो जाएंगे, मेरे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। दिल ने कहा कि तू यही समझता है ना कि यहाँ 72 है, वहाँ 9 लाख का लश्कर है, यानी मौत हतमी। उसने कहा सूरत हाल तो यही है। दिल कहता है मासूम से लड़के भी किधर जाना है तूने, मासूम से लड़के भी किधर जाना है तूने, शब्बीर से लड़के भी तो मर जाना है तूने। अब वो चला है बारगाह हुसैन, आ गया हुसैन की बारगाह में। हुसैन ने उर को देखा, गले से लगा, उर ने कहा मौला माफ़ कर। हुसैन कहते हैं तू अभी तक समझा नहीं, और अभी तक तू समझा नहीं। उर ने कहा क्या नहीं समझा? हुसैन फरमाते हैं जिस दम तू मेरी सिमत बसत शान गया था, जिस दम तू मेरी सिमत बसत शान गया था, तूने मुझे रोका मैं तुझे जान गया था, तू कौन है उस वक्त ही पहचान गया था। हुसैन कहते हैं हुर तू समझा नहीं है, तूने मेरे लश्कर को रोका था। मैंने रोका था। कहा तूने ही कहा था ना कि अब लश्कर का रुख मोड़ दो। उन्होंने कहा हाँ मैंने ही कहा था। हुसैन कहते हैं तूने ही कहा था ना कि अब लश्कर मेरी मर्जी से जाएगा। उन्होंने कहा हाँ मैंने ही कहा था। हुसैन कहने लगे तू समझा नहीं, कासिम, ओनो, मोहम्मद, अकबर, अब्बास और सज्जाद जैसे लोगों के होते हुए तू ये समझता है कि तू अपनी मर्जी से मुझे करबला ले आया। तू जानता नहीं है, तूने मुझे रोका मैं तुझे जान गया था, तू कौन है उस वक्त ही पहचान गया था, और पहचान गया था तो तेरी मान गया। क्या पहचाना है हुसैन ने? पहचान गया था तो तेरी मान गया था। हुसैन कहता है कि अब्बास के होते हुए तो मुझे अपनी मर्जी से करवाना। बस एक वाक़या अर्ज़ करके चलूँगी फिर मसाइब की मंजिल। कि बचपन है अली के लाडले। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने कहा मौला अली से कि बाबा हम हज पे जाना चाहते हैं। गर्मियों के दिन थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन मक्के के सफ़र के लिए रवाना। रास्ते में प्यास का गलबा महसूस हुआ। इमाम हुसैन ने इमाम हसन से कहा भैया प्यास लग रही है। इमाम हसन ने दूर तक निगाहें दौड़ाई। दूर एक दरवाज़ा नज़र आया। इमाम हसन ने कहा कि ऐसा करते हैं भैया हुसैन, उस दरवाजे तक चलते हैं और जाकर पानी तलब करते हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन उस दरवाजे तक आए। दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि 2 चांद दरवाजे पे नमूना। दौड़ती हुई गई, अपने बूढ़े मियाँ को उठाया और जाकर बोला कि जल्दी उठो और देखो दरवाजे पे कैसा मंजर है कि अगर तुमने ये ना देखा तो समझो तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा। बूढ़ा आदमी कहने लगा 82 साल मेरी उम्र हो चुकी है, मैं पूरी दुनिया देख चुका हूँ, ऐसा क्या मंजर है जो आज मैंने नहीं देखा।
تو मैंने दुनिया में कुछ नहीं देखा। उसने कहा तुमने फलक पर भी रात में एक वक्त में एक चांद को देखा होगा, आज दिन के वक्त हमारे दरवाजे पे 2 चांद है। बूढ़ा आदमी इस औरत के साथ दरवाजे पे आया, इमाम हसन और इमाम हुसैन को देखा। मौला हसन फरमाते हैं कि हम मुसाफिर हैं, मदीने से आए हैं, बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहम्मद के नवासे हैं, अली के फर्जंद हैं और पानी तलब। बूढ़ी औरत ने कूजे में लाके इमाम हुसैन को पानी दिया। इमाम हुसैन ने वो पानी पिया और पानी पीने के बाद उस औरत से कहा मांग क्या मांगना चाहती, मांग क्या मांगना चाहती है। वो औरत कहने लगी हूँ तो 80 साल की, अब तारुफ सुन चुकी है, हूँ तो 80 साल की, दिल भी चाह रहा है, ख्वाहिश भी बहुत है, लेकिन 80 साल की हूँ, हिचकिचाहट भी आ रही है, शर्मिंदगी भी हो रही है। हुसैन ने कहा दिल खोल के मांग, मत हिचकिचा, दिल खोल के मांग। कहा 80 साल की हो चुकी हूँ, 82 साल का मेरा शौहर है, लेकिन अब तक औलाद से महरूम हूँ, औलाद चाहती हूँ। इमाम ने कहा ये जो तू कूज़ा देख रही है, इससे पानी भर के, इस कूज़े में पानी भर के तू इस पानी को पी ले, इसमें तकदीर के लब लग चुके हैं। 1 साल बाद खुदा तुझे एक बेटा नवाजेगा। उस बच्चे का नाम ना रखना, उस बच्चे के कान में अजान नहीं देना, उस बच्चे के कान में अकामत मत देना, उसका नाम नहीं रखना, उसे लेके मदीने आ जाना, आकर बनी हाशिम का मोहल्ला पूछना, सैयदों की हवेली पूछना, हुसैन का दर पूछना। 1 साल गुजर गया, बूढ़ी औरत के घर में एक बेटा पैदा हुआ। बूढ़ी औरत उस बच्चे को लेके मदीने आ गई, आके सैयदों की हवेली पूछी, कमरे बनी हाशिम का मोहल्ला पूछा, हुसैन का दरवाज़ा पूछा, हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी, हुसैन ने दरवाजे को खोला, बूढ़ी औरत ने बच्चे को हुसैन दिया। इमाम हुसैन ने एक कान में अजान दी, एक कान में अकामत दी और बच्चे के माथे पे बोसा दिया। बूढ़ी औरत को बच्चे को वापस करके कहा जा आज से हमने इसका नाम हुर रख दिया, जा आज से हमने इसका नाम हुर रख दिया। हुसैन कहते हैं तूने मुझे रोका, मैं तुझे जान गया था, तू कौन है उस वक्त ही पहचान गया था, और पहचान गया था तो तेरी मान गया था। हुसैन कहते हुर क्या तू समझ रहा है, ये जो तू इस वक्त आया है ये इस लम्हे का करम है, ये इस वक्त का करम है। हुसैन कहते नहीं, मिसाक में हमने ये तेरा वक्त चुना था, मिसाक में हमने ये तेरा वक्त चुना था, जिस वक्त बना था तुझे उस वक्त चुना था। बड़ी तरतीब से हुसैन ने तरतीब दी है क्या था? इस तरीके से हुसैन ने लश्कर को चुना। सिर्फ करबला में हुसैन ने लश्कर को नहीं चुना, बल्कि क़यामत तक हुसैन ने अपना लश्कर चुना। जभी तो हुसैन ने 26 रजब को वलीद के दरबार में एक जुमला कहा था, मेरी ज़िंदगी कुर्बान हुसैन के इस जुमले पर कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर। हुसैन चाहते तो ये कह देते कि हुसैन इब्ने अली यजीद इब्ने माविया की बैत नहीं कर सकता। हुसैन फरमाते मुझ जैसा। हुसैन बता रहे हैं कि हुसैन अकेले नहीं है, क़यामत तक जितने हुसैन आते रहेंगे, और यजीद भी अकेला नहीं है, क़यामत तक जितने यजीद आते रहेंगे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं। इसलिए हुसैन ने क़यामत तक अपना लश्कर चुन लिया। हुसैन बैत से इनकार करके वापस अपनी हवेली आ गए। जनाब उम्मुल बनीन ने पूछा बेटा हुसैन दरबार में क्या हुआ? हुसैन फरमाते हैं अम्मा अब नाना की उम्मत मदीने में रहने नहीं देती। एक बार जनाब अब्दुल्ला ने तलवार को खींच के कहा हुसैन मुझे सिर्फ नाम बताओ, कौन है जो मदीने में रहने नहीं देता? हुसैन कहते अब्दुल्ला तलवार को नयाम मिला, अभी हुसैन ने जंग नहीं करनी, अभी हुसैन ने हिजरत करनी। बैज़रनामा तैयार होना शुरू हुआ, हुसैन ने एक एक के नाम लिखवाना शुरू किया। कासिम का नाम लिखवाया और मोहम्मद का नाम लिखवाया, अकबर का नाम लिखवाया, अब्बास का नाम लिखवाया, सज्जाद का नाम लिखवाया। एक बार हुसैन ने अली असगर का नाम लिखवाया। अब्दुल्ला कहते हैं हुसैन असगर बहुत छोटा बच्चा है, महज 18 दिन का है, गर्मियों का सफ़र है,
बिना माँ के असगर मर नहीं जाएगा। हुसैन फरमाते किसने कहा कि असगर अकेले सफर करेगा, इस सफर में असगर की माँ भी साथ जाएगी। बस पहली दफा अब्दुल्ला की आवाज़ हुसैन की आवाज़ से बुलंद हुई। अब्दुल्ला खड़े होकर कहते हैं अली की बहू और धड़ से बाहर। हुसैन फरमाते सिर्फ अली की बहू है नहीं, सिर्फ अली की बहू है नहीं, अली की बेटियां भी सफर में साथ जाएंगी। और जनाब अब्दुल्ला एक बार जमीन पे गिरे, आवाज लगाई है ओलो मोहम्मद, तुम्हारा बाबा उठने के काबिल नहीं रहा, ए ओलो मोहम्मद बाबा को सहारा। ये है अब्दुल्ला का ज़ौक़, ये है अब्दुल्ला की बीमारी, जिसकी वजह से जनाब अब्दुल्ला करबला आना चाहते हैं। अब जनाब ज़ैनब बड़ी बेचैन है, बड़ी मुस्तरब है कि अब्दुल्ला इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। बस एक बार जनाब अब्दुल्ला के हुजरे में आई और आकर ज़मीन पर बैठ गई। जनाब अब्दुल्ला ने जो ज़ैनब को ज़मीन पे बैठे देखा, लोग ये कहते हैं ज़ैनब तेरा ज़मीन पे बैठना मुझे बता गया, ज़ैनब तू आज गरीब हो गई। मैं जानता हूँ ज़ैनब आप इजाज़त लेने आई हैं, मैं जानता हूँ आप भाई के साथ जाना चाहती है, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, बस मुझ पे इतनी मेहरबानी करे, मुझ पे इतना करम करे कि जब तक मेरे घर में मौजूद हैं किसी ऊंचे मकाम पर बैठे, किसी ऊंची जगह पर बैठे, ऐसा ना हो कि अब्बास अभी आपको लेने आ जाए और अब्बास आपको जमीन में बैठा देख ले, अब्बास बर्दाश्त न कर सकेंगे। बस एक बार जनाब अली अकबर आ गए फूफी को ले। अब्दुल्ला ने कहा अकबर जाकर हुसैन से कहो कि मैं मना नहीं करता, तुम्हारा तुर्का है, तुम्हारी विरासत है, तुम्हारा खून है, ज़रूर ले जाओ, लेकिन जाकर हुसैन से कहो कि अब्दुल्ला ने कहा है कि सिर्फ अकबर नहीं बल्कि जितने बनी हाशिम है सब ज़ैनब को लेने के लिए आए, ताकि तारीख को पता चले कि जब ज़ैनब मदीने से निकली थी तो कितनी आबाद थी। तमाम कब्रें बनी हाशिम जमा हो गए। जनाब अब्दुल्ला ने इमाम हुसैन को पास बुलाया, कहा हुसैन एक वादा करो कि जितने बनी हाशिम ज़ैनब को लेने आए हो, जितने बनी हाशिम वापस में छोड़ने आओगे। इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला के हाथ से अपना हाथ निकाला, हुजरे से बाहर आए, आवाज़ दी कासिम बाहर आ जाओ, बोलो मोहम्मद बाहर आ जाओ, अकबर बाहर आ जाओ, अब्बास बाहर आ जाओ। सैयद सज्जाद का हाथ पकड़ा और कहा जाओ कुप्पी को लेकर आओ, लेने भी तुम जा रहे हो, छोड़ने भी तुम जाओगे। रुखसत जनाब ज़ैनब हो चुकी। मैं नहीं जानती कि हुसैन ने नाना का रोज़ा कैसे छोड़ा, बस हुसैन आ गए माँ की कब्र पर। हुसैन ऐसे माँ की कब्र पर आए हैं जैसे 6 माह का बच्चा घुटनियों के बल चल के आता है। अल्लामा लिखते हैं कि हुसैन माँ की कब्र पर इस तरीके से आए जैसे रोज़े आशूरा अली अकबर की कब्र पर, कभी घुटनियों के बल, कभी कोहनियों के बल चलकर आकर जुमला का अम्मा हुसैन का आखिरी सलाम का, अम्मा हुसैन अब कभी मदीने वापस नहीं आए, माँ की कब्र से रुखसत ले। बस ये आखिरी रुखसत है। एक रुखसत और है जो हुसैन ने अपनी बीमार बेटी से ली, एक रुखसत और है जो एक भाई ने अपनी बीमार बहन से ले ली है। जब ये काफिला तैयार हो रहा था ना, ये तमाम बीवियां बेचैन थी कि कल पता नहीं हुसैन साथ लेकर जाएंगे नहीं लेकर जाएंगे, क्या पता हुसैन लेकर जाएंगे नहीं लेकर जाएंगे। बस एक सुगरा थी जिन्हें बड़ा इत्मीनान था, बड़ी तसल्ली थी। एक कहीं से पूछा बीबी आपको इतनी तसल्ली क्यों है कि हुसैन आपको साथ लेकर जाएंगे? तो सुगरा ने कहा असल में बाबा को मुझे ले जाना मेरे बाबा की मजबूरी है। कहीं से पूछा क्यों बीबी? कहा इसलिए कि बाबा अकबर के बगैर नहीं रह सकते और मैं अकबर के बगैर नहीं रह सकती। अकबर जब तक मुझे ना देखे अकबर को चैन नहीं आता। बस एक बार मौला अब्बास आए और आकर कहा मुझे मौला गजब हो गया, सुगरा महफिल में बैठ चुकी है, बड़ा मान है सुगरा को अकबर पर। बस हुसैन ने आवाज लगाई अकबर जाके बहन को महफिल से उतारो। जनाब अकबर महफिल के पास आके खड़े हुए, आकर
رونا شروع کیا. بھائیوں والی بہنیں موجود ہیں, خدا کسی جوان بھائی کو بہن کے سامنے نہ رلائے. اکبر نے رونا شروع کیا. زہرا محمل سے اتری. اکبر میں تو تیری وجہ سے محمل میں سوار ہوئی. اکبر تو نے بولا نہیں لیکن میں محمل سے اتر آئی. اکبر تو نہیں چاہتا میں نہ جاؤں, میں نہیں چاہتی. اکبر تو نہیں چاہتا, تو نے مانگا نہیں, میں اتر آئی. لیکن اکبر ایک وعدہ کر, میں تجھ سے مانگ رہی ہوں. اکبر نے کہا حکم کرو. کہا حکم نہیں کہ منت کر رہی ہوں کہ تم اگر کبھی سر پہ اگر سینا سجانا اکبر, میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر. تم جو مصروف ہو شادی میں نے تو لینے آنا, میں خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر. اور اگر میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں, اگر میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں, اپنی بارات میری قبر پہ لانا. اللہ علیہ